Hello student, I am Dr. S. Kandare, Department of Botany, KMC College Khopoli. The title of our presentation is Semi-Conservative DNA Replication and Michelson-Stahl Experiment. Now let us see what is semi-conservative DNA replication. The contents: what is replication, how DNA replicates, Michelson-Stahl experiment to prove semi-conservative method of DNA replication. Now let us see what is replication. DNA replication is molecular process of producing identical copies of DNA molecule. Identical copies of single DNA molecule. So DNA replicates itself to produce its own copies. Replication is under the control of DNA itself, hence it is called autocatalytic process. So this is important thing. DNA is the master molecule in the cell and it has autocatalytic capacity. So DNA should replicate in order to continue the race or the cell, the life of the cell. So therefore, for continuity of life, replication of DNA is an important process in biology. So how this replication occurs, isn't it? How DNA replicates? This is the question, and this question was a very big question after the discovery of DNA molecule by Watson and Crick. So there are three hypotheses of DNA replication, isn't it? Actually, at that time, the scientist was thinking about how DNA replicates. Though Watson and Crick proposed that DNA replicates through semi-conservative method, but it was not proven, isn't it? तो वैटसन एंड क्रिक ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, isn't it? तो तीन प्रकार के assumptions थे, hypothesis थे. एक था कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, नेक्स्ट डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन, and third semi conservative DNA replication. So these three concepts were prevalent during 1953-54, isn't it? After the DNA discovery. So conservative, dispersive and semi-conservative mode of DNA replication. So these methods of replication can be represented pictorially in this way. Suppose this is the conservative method, isn't it? Now here you can see this parent DNA molecule, and this is the new DNA molecule synthesized from the this parent DNA molecule. Now here you can see this parental DNA molecule is totally conserved. So therefore this method of DNA replication is called conservative mode of DNA replication. Another is dispersive mode of DNA replication. So in this hypothesis, it is assumed that the DNA molecule fragments at different places. अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए ब्रेक हो गया. अब यहाँ पर देखिए आप येलो कलर, यहाँ पे एक उसका पीस है, यहाँ पर एक पीस है और यहाँ पर एक नीचे एक पीस है, और फिर बीच बीच में ब्लू कलर के नए टुकड़े फ्रैगमेंट्स ऐड हो गए, isn't it? तो ये ओरिजिनल पेरेंटल फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एंड दिस इज द newly synthesized DNA molecule fragment. So this hypothesis is like this: dispersive mode of DNA replication, यानी कि DNA जो पेरेंटल DNA उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बीच बीच में नए नए टुकड़े इंसर्ट हो जाते हैं. तो इस किस्म का कुछ हाइपोथेसिस ये डिस्पर्सिव मेथड बताता है. देन आता है semi-conservative mode of replication. So in this mode of replication you can see here this parental
DNA molecule is half conserved, isn't it? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पीले रंग का ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है और ये इसके दो स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो यहाँ पर एक येलो कलर की स्ट्रैंड है, ये येलो कलर की स्ट्रैंड है और उसके ऊपर ब्लू कलर का ये नया स्ट्रैंड बन गया। सो दिस मेथड shows that the DNA replication is semi-conservative. This parental yellow colored strand and this new blue colored strand. तो इस प्रकार से दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये तीन हाइपोथेसिस थे, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। So there was a controversy during 1955-56 during that time, and the big question was that which method is the correct method for DNA replication, this one or this one, कौन से मेथड डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा एक कंट्रोवर्सी was very prevalent during that time. तो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा होगा कि ओरिजिनल स्ट्रैंड सेपरेट्स ईच टेम्पलेट डुप्लीकेट्स, दैट इज पेरेंट येलो वन, एंड न्यू ब्लू जॉइंस येलो स्ट्रैंड parental blue strand new one and parental strand is conserved, isn't it? Hence it is called conservative mode of replication, isn't it? So here you can see this parental strand is conserved and this is totally new one. So therefore this method of replication is called conservative mode of replication, isn't it? तो ये एक hypothesis है. Another is dispersive method of DNA replication. Original strand breaks and synthesizes bits of DNA fragments. These fragments rejoin and form hybrid DNA. तो कुछ इस प्रकार से हैं ये हाइपोथेसिस के अंदर, जैसा मैंने बताया कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड विल break down into such small bits or fragments, and then new pieces or fragments of the DNA bits will be inserted or attached to the parental strand. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में पेरेंटल फ्रैगमेंट है और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट है। तो इस प्रकार से ये फ्रैगमेंट्स के रूप में, टुकड़े टुकड़े के रूप में ये रेप्लिकेशन होता है, ऐसा ये हाइपोथेसिस कहता है। अभी कौन सा हाइपोथेसिस सही है ये जांचना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताया है, isn't it? So original strand separates forming templates. On both templates new strands, that is blue one, is formed. Thus half old and half new strand is formed. Hence it is called semi-conservative mode of DNA replication. So here you can see, now this is a parental double-stranded DNA molecule. It is separated into templates, isn't it? Single-stranded templates, and on these template strand newly blue-colored strands are synthesized, isn't it? So ये ब्लू कलर में जो बताया है ये नया स्ट्रैंड है, ऐसा ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बताता है. सो हियर यू कैन सी parental and old strands acts as a template strand which guides the synthesis of new strand. ऐसा ये hypothesis कहता है. You can see here new strand synthesized on template strand, isn't it? ये blue color का. So in this way, this is the third hypothesis, semi-conservative mode of replication.
and this hypothesis is now proved, isn't it? Now this is the proved thing. अभी इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अभी ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है और अभी हम समझ चुके हैं, बायोलॉजिस्ट समझ चुके हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही होता है. सो दिस hypothesis is proved later on by these two great scientists. इन्होंने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. हैव शोन इट थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन. तो ये बहुत ग्रेटेस्ट है और उन्होंने ये डिस्कवर किया, इन्होंने खोज निकाला है एक्सपेरिमेंट करके और दुनिया को बता दिया है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही होता है. सो देयरफॉर दिस इज़ द ग्रेट डिस्कवरी इन द एनल्स ऑफ लाइफ साइंसेस, है ना. यानी कि वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल बनाया डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हेलिकल मॉडल, तो उसके बाद की एक अच्छी और बड़ी डिस्कवरी लाइफ साइंसेस में मानी जाती है. तो ये जो दो साइंटिस्ट है, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, तो एक है मैथ्यू मिशेल्सन एंड दूसरे हैं फ्रैंकलिन स्टाल. सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया और उन्होंने बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कोई और तरीके से नहीं बल्कि सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही होता है. सो देयरफॉर वी हैड टू सैल्यूट एंड वी हैड टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ टू ग्रेट साइंटिस्ट. बहुत ही बढ़िया किस्म का इन्होंने जो है एक प्रूफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में दिया है. अभी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे किया था और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज्ड एस्चेरिशिया कोली एज देयर ऑर्गेनिज्म फॉर द एक्सपेरिमेंट. एस्चेरिशिया कोली और शॉर्ट में हम इसे ई कोलाई कहेंगे. ये तो बहुत कॉमन इस प्रकार की बैक्टीरिया है जो लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ की जाती है. सो एस्चेरिशिया कोली हैज़ डीएनए रेप्लिकेशन टाइम ऑफ 20 मिनट्स कॉल्ड वन जनरेशन. तो ये जो डीएनए उसका रेप्लिकेट होता है ना कि एस्चेरिशिया कोली का रेप्लिकेशन हर 20 मिनट को होते रहता है, तो उसका डीएनए भी रेप्लिकेट होते रहता है. इसीलिए उसका एक जनरेशन टाइम जो है वो 20 मिनट का है. ये पहले समझ लेना चाहिए कि एस्चेरिशिया कोली का जो जनरेशन है, एक जनरेशन का जो पीरियड होता है 20 मिनट का होता है. तो 20 मिनट में उसका डीएनए रेप्लिकेट होता है. तो वी आर कंसर्न हियर विद द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. देयरफॉर वी हैव टू कंसिडर दिस 20 मिनट्स एज ए वन जनरेशन ऑफ एस्चेरिशिया कोली. Okay, so this is the important thing. Next requirement is N14, that is light nitrogen isotope in the form of NH4Cl, isn't it? तो ये जो है नाइट्रोजन वहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि रेप्लिकेशन जब होता है वहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस लगते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडाइंस. तो ये जो नाइट्रोजन बेसेस है ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये आइसोटोपिक नाइट्रोजन यूज़ किए इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl. ओके, तो ये लाइट नाइट्रोजन है, N14. ओके, और ये दूसरा उसका आइसोटोप है N15. इट इज़ कॉल्ड हेवी नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl. ओके, तो ये लेबलिंग हो गया आइसोटोप्स का, इजंट इट. तो N14 लाइट नाइट्रोजन, N15 हेवी नाइट्रोजन. देन 6 मोलार CaCl, दैट इज सीजियम क्लोराइड. ये हेवी सॉल्ट है, हेवी मेटल सॉल्ट, और ये भी उन्होंने यूज़ किया सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए. तो ये जो मीडियम है इसके अंदर उन्होंने ये डीएनए डाल करके उसको सेंट्रीफ्यूज किया है 6 मोलार सीजियम क्लोराइड के अंदर. वो टेस्ट ट्यूब में लेकर के उन्होंने वो सेंट्रीफ्यूगेशन किया और उससे उनको पता चला कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, isn't it? सो सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन ये मेथड उन्होंने यूज़ किया है. सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन ये मेथड उन्होंने यूज़ किया. एंड दिस इज़ द
ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया ये हमारे एक्सपेरिमेंट का ये क्या कहेंगे एक्टर हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, ई कोलाई। सो यू कैन सी दिस इज द बैक्टीरिया एंड उसका ये डीएनए यहाँ पर है। तो ये बैक्टीरिया उन्होंने यूज़ किया है। सो दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अभी जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैरी आउट किया तो क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, एस्चेरिशिया कोली नाम की जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहले लाइट नाइट्रोजन मीडिया में ग्रो किया उसको, N14 जिसे कहेंगे, और उसके बाद में N15 यानी कि हेवी नाइट्रोजन इसके मीडिया के अंदर उन्होंने उसको ग्रो किया है फॉर मेनी जनरेशंस। तो ये बात पहले इन्होंने यहाँ पर की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे टुक light nitrogen, that is N14 containing media, isn't it? N14 light nitrogen containing, this is the medium, and in this medium they grew the E. coli bacterium. इसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया है, एस्चेरिशिया कोली नाम का जो बैक्टीरिया है उसको उन्होंने इसके अंदर कल्चर के अंदर ग्रो किया। ओके, अभी ये क्या होगा, उसका रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पर ये बैक्टीरिया विल रेप्लिकेट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 20 मिनट्स, उसका जनरेशन बढ़ते रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये बैक्टीरिया को बहुत सारे जनरेशन्स के लिए, मैनी जनरेशन्स के लिए दे ग्रीव दिस बैक्टीरिया इन दिस मीडिया कंटेनिंग N14 नाइट्रोजन, दैट इज लाइट नाइट्रोजन। ओके, डीएनए कल्चर्स आइसोलेटेड। तो उसके बाद में डीएनए कल्चर्स आइसोलेटेड एंड सब्जेक्टेड टू सॉल्ट डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इस प्रकार से। तो ये आइसोलेट किया ये इसका डीएनए और इसको ये टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड के अंदर 6 मोलर सीजियम क्लोराइड के अंदर इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया एंड इट दे सेंट्रीफ्यूज्ड इट, है कि नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेंट्रीफ्यूज्ड इट एट 40,000 to 50,000 RPM रिवोल्यूशंस पर मिनट फॉर 48 to 72 आवर्स। और उसके बाद में एक किस्म का इक्विलिब्रियम इसके बीच में आ गया, इजंट इट। ये टेस्ट ट्यूब इस तरह घूमते रहा, इजंट इट, और मॉलिक्यूल्स इस तरफ सेटल होते रहे और डीएनए ऐसा इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सेटल होते चले गया। ये एरो इंडिकेट करता है, इजंट इट, सेंट्रीफ्यूगेशन इन CSCl। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अप्लाई किया है टेस्ट ट्यूब को, इजंट इट। तो फिर ये करने के बाद जब इसको जांचा गया, इसको टेस्ट किया गया टेस्ट ट्यूब को, ये टेस्ट ट्यूब यहाँ से निकाल दिया, फिर इसको ऑब्जर्वेशन में लिया गया, तो दे फाउंड दैट देयर वाज ए बैंड ऑफ ए लाइट आइसोटोप। यहाँ पर उनको बैंड नज़र आया, इजंट इट, N14 का बैंड। तो ये क्या हो गया, ये इधर डेंसिटी ज़्यादा है, इधर कम होते गया, इजंट इट। इट इज प्लस साइन इंडिकेट्स दिस सीजियम क्लोराइड इज डेंस हियर एंड डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज इन दिस डायरेक्शन। तो N14 दैट इज लाइट बैंड अपीयर्ड हियर, क्योंकि ये N14 जो है लाइट है, तो लाइट होने जैसे उसका जो बैंड है यहाँ पर पाया गया। तो इसका मतलब है कि ई कोलाई का रेप्लिकेशन हो गया। वो रेप्लिकेशन होते वक्त वो जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, वो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस लिए गए सिंथेसिस के दौरान वो इस प्रकार के थे, N14 यानी कि लाइट नाइट्रोजन थे, इसीलिए उसका जो बैंड है ये ऊपर दिखाई दिया है। ओके, तो ये पहली स्टेप हो गई। बाद में उन्होंने क्या किया, दे टुक N15 दैट इज हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप। ओके, अभी इसके अंदर भी उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया, दे ग्रीव द E. coli bacteria in this media also, and they carried out the same procedure. Then they isolated that DNA cultures, isolated and subjected to the centrifugation. The same process is applied to this N15
culture. Okay. Then they found these results. So you can see here the test tube shows a band of N15 nitrogen at the base, isn't it, towards high density, isn't it. तो इस प्रकार से you can see that the light nitrogen N14 is incorporated in these E. coli DNA molecules, and therefore the band appeared towards this side, isn't it, towards the upper test tube. And when the bacteria grew in this nitrogen isotope, after centrifugation, the bands appeared toward the bottom of the test tube, isn't it, because it is heavy N15 nitrogen. So this is the first thing they did. तो यहाँ से पता चलता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो नाइट्रोजन बेसेस जो यूज़ किए गए हैं वो लाइट थे, इसलिए बैंड यहाँ पर आ गया. जब बैक्टीरिया N15 हेवी आइसोटोप के अंदर ये बेकर के अंदर बढ़ाए गए, कल्टीवेट किए, उनका रेप्लिकेशन हो गया, तो डीएनए का सिंथेसिस हुआ, तो नाइट्रोजन बेसेस N15 वाले डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए. तो उसका जो एनालिसिस किया फिर तो बैंड यहाँ नीचे आ गया, इज़न्ट इट. तो इस प्रकार से ये पहला था. तो हम समझ सकते हैं थ्रू दिस एक्सपेरिमेंटेशन कि डीएनए का जब सिंथेसिस होता है तो जो नाइट्रोजन बेसेस यूज़ किया गया है तो वो लेबल हो गए, इज़न्ट इट. एंड देयरफॉर वी कैन ऑब्जर्व द लाइट एंड हेवी bands in the centrifugation of this particular salt, isn't it, cesium chloride salt के अंदर इसका इस प्रकार से centrifugation करने के बाद bands पाए जाते हैं. तो ये होने के बाद अगला जो उनका स्टेप था वो क्या था. तो पहले ये जो स्टेप्स के अंदर पहली जो स्टेप उन्होंने की है, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, N14 लिया, isn't it, the culture containing light nitrogen, that is N14, then added this E. coli, isn't it. Then these E. coli were grown for many generations in light, that is N14 isotope, isn't it. तो क्या किया, पहली बात उन्होंने ये की कि ये N14 लिया, लाइट नाइट्रोजन लिया कल्चर के अंदर, उसको ई कोलाई को इसमें डाल दिया और उसको बहुत सारे जनरेशन्स, यानी कि 20-20 मिनट के उसके जनरेशन्स होते हैं, तो बहुत सारे जनरेशन को वहाँ ग्रो होने दिया, isn't it, in the light N14 isotope. फिर बाद में क्या किया, the E. coli DNA isolated and centrifuged in salt density gradient centrifugation, isn't it. उसको isolate करके उसका centrifugation किया cesium chloride के अंदर, isn't it. तो क्या पाया गया कि जो हमने पहले स्लाइड में देखा कि इधर बैंड आ जाता है, because this N14 is light, so the band appears towards the upper end of the test tube. ओके. और यहाँ पर हमें देखना है कि ये मेनी जनरेशन्स तक उन्होंने इसको ग्रो किया, तो यहाँ बैंड आ गया. जो नेक्स्ट स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, उसके अंदर क्या किया फिर, ई कोलाई कल्चर ग्रोन ऑन मेनी जनरेशन इन लाइट N14 इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू हेवी N15 कल्चर. अभी ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ से क्या किया उन्होंने, प्रोटीन के अंदर जो बैक्टीरिया यहाँ पर पल रही थी, दैट बैक्टीरिया वेर आइसोलेटेड एंड दिस बैक्टीरिया ट्रांसफर्ड टू दिस मीडिया, दैट इज N15 कंटेनिंग हेवी नाइट्रोजन. ओके. फिर उस बाद में क्या किया,
तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर 1 जनरेशन, दैट इज़ आफ्टर 20 मिनट्स। एक जनरेशन के बाद यहाँ से निकाला, ये टेस्ट ट्यूब के कल्चर के अंदर डाल दिया कंटेनिंग N15 नाइट्रोजन। फिर 20 मिनट के बाद, यानी कि वो ई कोलाई के 1 जनरेशन के बाद ई कोलाई DNA आइसोलेटेड एंड सेंट्रीफ्यूज्ड इन सॉल्ट डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, उसको आइसोलेट करके सेंट्रीफ्यूगेशन किया। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या पाया गया? सो दे गॉट द रिजल्ट्स, they got the results. Now look the result carefully. Here they got the hybrid DNA containing N14 and N15 bands. It is the 100%। यहाँ पर कोई और बैंड यहाँ पर नज़र नहीं आया। यहाँ पर जो बैंड नज़र आया तो हाइब्रिड बैंड है, N14 और N15 का बैंड्स ये बीच में नज़र आया, isn't it? जैसा हमने पहले स्लाइड में देखा कि bands appear either towards upper side or towards the lower side, but now when the culture is transferred from this N14 light to N15 heavy nitrogen, and after 1 generation, that is after 20 minutes, they centrifuged it and found that they got the hybrid band of N14 and N15 in the center of the test tube। तो ये हाइब्रिड बैंड जो मिला, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर दोनों भी जो नाइट्रोजन है, दैट इज़ हेवी एंड लाइट नाइट्रोजन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द DNA ऑफ ई कोलाई का जो DNA यहाँ पर तैयार हो गया एक जनरेशन, जो ये पहला जनरेशन है 20 मिनट के बाद, तो वो DNA के अंदर दोनों भी यानी कि N14 एंड N15 किस्म के नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गए मॉलिक्यूल के अंदर। तो इससे ये जो DNA बनेगा, तो ये कैसे दिख रहा है? ये हाइब्रिड दिख रहा है, देखिए, isn't it? बोथ कलर्स आर देयर, isn't it? ये N14 वाला कलर है और ये N15 वाला है। सो दिस इज़ द हाइब्रिड DNA। तो इससे पता चलता है कि जब भी DNA बनता है तो इट इज़ सिंथेसाइज्ड थ्रू सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इज़न्ट इट? तो इस प्रकार से मिचेल्सन एंड स्थाल ने बता दिया कि जो DNA का रेप्लिकेशन होता है, दैट रेप्लिकेशन इज़ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड। ओके, अभी ये 2 स्टेप हो गए। ओके, ये स्टेप होने के बाद अब थर्ड स्टेप में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है थर्ड स्टेप में? अब जैसा यहाँ पर हमने देखा ये स्लाइड के अंदर कि यहाँ तक हम आए, इज़न्ट इट? ये फर्स्ट जनरेशन है, 20 मिनट का ये जनरेशन हो गया। अभी सेकंड जनरेशन में उन्होंने क्या किया? ये तीसरा स्टेप उन्होंने किया। तो सेकंड जनरेशन के लिए ये N15 उन्होंने लिया, isn't it? After first hybrid generation, if continued in N15 after 40 minutes, that is second generation। अभी पहले तो 20 मिनट का उन्होंने एनालिसिस किया सेंट्रीफ्यूगेशन से, बाद में वो कंटिन्यू अगर करते हैं सेकंड जनरेशन में, यानी कि 40 मिनट्स के बाद अगर इसका एनालिसिस करते हैं, है कि नहीं? अगर वो ही जनरेशन में, वही टेस्ट ट्यूब में अगर उनको एनालिसिस करना है, N15 में ही उसको बढ़ाते हैं, तो क्या पाया जाएगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर 40 मिनट्स, यानी कि सेकंड भी, इज़न्ट इट? अभी सेकंड जनरेशन में अगर इसको चेक किया जाए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो हाइब्रिड DNA पहले ही था, ये यहाँ पर एक बैंड आफ्टर 40 मिनट्स, यानी कि सेकंड जनरेशन का यहाँ पर पाया जाता है N15 का, लेकिन ये 50% है।
परसेंट है, आधा आधा हो गया हाइब्रिड डीएनए N14 एंड N15, तो ये लाइट एंड हेवी नाइट्रोजन जो है 50% यहाँ पाया गया और ये 50% यहाँ पर N15 का कब पाया गया? आफ्टर 40 मिनट्स, यानी कि सेकंड जनरेशन में, पहले जनरेशन तो पहला हाइब्रिड 100% मिल गया था, लेकिन सेकंड जनरेशन में हाइब्रिड 50% एंड दिस हेवी 50% इन 50%। तो इस प्रकार से ये पाएगा। अगर सपोज सेकंड जनरेशन में वो जो ई कोला है उसको यहाँ पर अगर करते हैं, isn't it? After first hybrid generation, if continued in N14 after 40 minutes, that is in second generation. अब ये सेकंड जनरेशन 15 नाइट्रोजन वाले में, हेवी नाइट्रोजन में किया तो यहाँ पर बैंड आ गया। अगर सपोज सेकंड जनरेशन को यहाँ अगर कल्टीवेट करते हैं वो बैक्टीरिया को, तो क्या होगा? So you will see another band will appear here, isn't it, after 40 minutes, isn't it? If the bacteria is continued to grow during their second generation in year 15, you will get a band here at the bottom, isn't it? That is 50%, और यहाँ पर हाइब्रिड 50% है, लेकिन सेकंड जनरेशन जो है तो 50% हेवी नाइट्रोजन का बता। और अगर इधर कंटिन्यू करते हैं सेकंड जनरेशन N14 में आफ्टर 40 मिनट्स, यानी कि सेकंड जनरेशन अगर यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं N14 में, isn't it? तो बैंड यहाँ पर आएगा, isn't it? And this is also a 50% light नाइट्रोजन, यू कैन सी हियर 50%। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हाइब्रिड डीएनए 50 हो गया और यहाँ पर ये लाइट नाइट्रोजन 50 हो गया। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। ओके, नाउ फिगर illustrating Michelson and Stahl experiment. This is another figure for your more understanding. So here you can see medium containing N15, that is heavy isotope. यहाँ पर अभी पहले बैक्टीरिया ग्रो कर लिए. Then these bacteria are transferred to the medium containing N14, that is light isotope, isn't it? अभी यहाँ पर बताया कि N15 heavy isotope will be incorporated into the genome of E. coli. So here it is indicated with blue color, isn't it? तो N15 में जब E. coli ग्रो होते हैं तो उसका जो DNA है वो N15 वाला होगा, isn't it? Which is indicated with blue color. Now after this these bacteria are transferred into the N14, that is light नाइट्रोजन, और उसको फिर एनालाइज किया गया आफ्टर 20 मिनट। तो ये पहला जनरेशन है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो F1 जनरेशन के अंदर ब्लू एंड ब्राउन कलर के दो स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं। सो हियर यू कैन सी आफ्टर 20 मिनट, ये 20 मिनट के बाद ये ब्लू कलर वाला जो स्ट्रैंड है वो हेवी है और ये ब्राउन कलर वाला जो है वो लाइट नाइट्रोजन का है, isn't it? उसके बाद आफ्टर 50 मिनट अगर सेम मीडिया के अंदर इसको ग्रो किया जाए तो 40 मिनट्स you will find that F2 generation will show 1:1 ratio of light and heavy nitrogen. So here you can see hybrid DNA molecule है, isn't it? 1:1 रेशो में, और ये यहाँ पर जो है तो ये N14 वाला, isn't it, लाइट, और ये ब्लू कलर वाला N15 हेवी, isn't it? तो आफ्टर 50 मिनट
the generation show 1:1 ratio, isn't it? That is 50-50. और आगे अगर उसको कंटिन्यू किया जाए, isn't it, मीडियम के अंदर N14 के अंदर, तो रिजल्ट इस प्रकार से हो गए. आफ्टर 60 मिनट you will find the F3 generation and the ratio is 1:3. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल है इसकी संख्या, इसकी मात्रा अब कम होने लगी है, isn't it? अब ये 1:3 रेशो में आ गया, isn't it? यानी कि 25% हाइब्रिड एंड 75% ये N14 वाला नाइट्रोजन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगा. तो इस प्रकार से यू विल फाइंड दैट दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सो आई हैव given all these things here. So you can see N15 heavy nitrogen isotope, N14 light nitrogen isotope, 20 minutes, one generation of E. coli, isn't it? Now here you can see F1 generation 100% hybrid DNA. तो ये F1 जनरेशन, ये हाइब्रिड DNA 100% है, isn't it? कि भाई यहाँ से इमिडिएटली इधर डाल दिए, 20 मिनट के बाद उसको निकाल के एनालाइज किए F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन 100% हाइब्रिड DNA का है, यानी कि लाइट एंड हेवी नाइट्रोजन का है. F2 जनरेशन में क्या होगा, फिर यहाँ पर 1:1 रेशो आ गया, यानी कि F2 जनरेशन शो 50% हाइब्रिड एंड 50% N14, दैट इज लाइट नाइट्रोजन. ओके, ये 50% हो गया. F3 जनरेशन अगर आगे उसमें ही रखा जाए तो F3 जनरेशन में क्या होगा, 25% हाइब्रिड एंड 75% दिस N14 लाइट आइसोटोप, isn't it? इस प्रकार का रिजल्ट होगा तो F3 जनरेशन में. तो इससे पता चलता है रेप्लिकेशन होता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव से होता है. हाफ ऑफ द DNA मॉलिक्यूल इज पैरेंटल एंड half is a new one. So in this way this experiment is going to prove that DNA replication occurs in semi-conservative method. It is proved that DNA replication is a semi-conservative process. One parental and another new strand is synthesized during DNA replication. तो ये इसका conclusion है. This ensures stability, continuity with similarity and variation. तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड से क्या होता है कि लाइफ का जो कंटिन्यूटी है, जो भी ट्रेट्स आते हैं जेनेटिक ट्रेट्स, उसमें सिमिलैरिटी भी होती है और वेरिएशन भी होता है, isn't it? As you know, in during study of genetics you might have heard these words in heredity, similarity and variation. तो ये दोनों भी ट्रेट्स और ये दोनों भी ट्रेंड्स प्रिजर्व किए जाते हैं, सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन, ड्यू टू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट सेमी कंजर्वेटिव replication and Michelson-Stahl experiment. So I recommend that you visualize this presentation repeatedly and prepare your own notes. Okay, thank you very much.